Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start a new lesson, lesson 7, the unhappy dog. In this lesson we are going to study about a dog, okay? A story about a dog, okay? So open your book, everyone. Lesson 7. The unhappy dog. Okay, so lesson 7, the unhappy dog. Open your book and take out page number 52. Okay, so in this lesson we are going to read a story about a dog. Okay, so before that there is one warm-up exercise given in your book. See here, there is a warm-up exercise. So what is asked there? Tick the things you can do and cross the ones you cannot. ओके सो आप क्या बोला है, आप इसमें से आपको 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आप जो कर सकते हो उसमें राइट टिक लगाना है एंड द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू यू हैव टू क्रॉस इट इन द गिवन बॉक्स. ओके सो आई विल राइट इट हियर. Wow. Okay. So, what is the first one? I can swim. Okay. The first one is I can swim. और एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है. देन उसके नीचे I can dance. Okay. Then I can fly. I can sing. Then I can run. I can skate. Okay. So we have to take right on the options that we can do and we have to cross where the option is wrong that we can't do. Okay, so the first one is I can swim. So can we swim? Yes, we can, right? We can swim. Okay, so tick right here. Okay, but you can't stay in water for so long as like a fish, है ना. जैसे कि आप जानते हो फिश क्या करती है, वाटर में स्विम करती है, राइट. लेकिन ऑल्सो द फिश लिव्स इन द वाटर, राइट. उसका घर भी वहीं होता है तो वो उसमें रहती भी है. बट वी कांट लिव इन द वाटर, राइट. वी कैन स्विम बट वी कांट स्टे और लिव इन द वाटर. ओके, देन नेक्स्ट आई कैन फ्लाई. कैन यू फ्लाई? No, you are not a bird, right? We are humans and we can't fly. So what we'll do? We'll cross it here. Okay. Then next, I can run. Can you run? Yes, we can. Okay. So what will you do? You will tick right here. Then next, I can dance. Can you? Yes, we can dance. So we'll write it. Okay. Then I can sing. Yes, we can sing. So we will pick a right here. I can skate. Skate, do you know? Yes, using a skateboard or skate shoes, we can skate. Okay, so we will take right here. Okay, so these are some warm-up questions that you have to do in your textbook on page number 52. Here. Okay, now the second is write 2 things that you cannot do but you wish to do. Okay, so आपको अब सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि आपको 2 लाइन्स दिए हुए हैं, इसमें आपको अपने विशेस लिखने हैं. ओके, ऐसी कोई 2 चीज़ जो आप करना चाहते हो बट आप कर नहीं सकते बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू फ्लाई. एवरीवन वॉन्ट्स टू फ्लाई, राइट. बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को वगैरह देख करके आप लोग को मन करता होगा ना, I wish if I could fly, है ना, but you can't, है ना. So the same way you have to write it here.
your wish. If you want to swim but you can't, है ना, if you want to fly, yes I want to fly but I cannot fly, है ना, ऐसे आपको यहाँ पे दो विशेस आपके लिखने हैं जो कि आप करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, है ना. So here you have to write, this is homework for you, everyone has to write this. Okay, now we'll move on to the lesson. Let's get started. All of you sit back and look into your book. Also keep your finger where ma'am is reading. Okay, now read this story. Snoopy was Raja's pet dog. Who was Snoopy? Snoopy was Raja's pet dog. Okay, so this is this lesson, the unhappy dog, is about Snoopy. Okay, स्नूपी कौन है? राजा का डॉग है और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं और ये लेसन का नाम क्या है? द अनहैप्पी डॉग, है ना. अनहैप्पी मीन्स सैड, नॉट सेटिस्फाइड और नॉट प्लीज्ड, है ना, जो कभी खुश नहीं होता. मतलब उसको उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ही इज़ हैविंग सो मेनी क्वालिटीज़ ऑल्सो, बट ही इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, है ना. ही वॉन्ट सम मोर थिंग्स. लाइक अभी हम लोग लेसन में पढ़ेंगे, मैं अभी से नहीं बताऊंगी आपको. स्लोली विल रीड एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक हिम अनहैप्पी दैट ही इज नॉट हैविंग, है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्नूपी वॉज राजा's पेट डॉग. स्नूपी कौन था? राजा का पेट डॉग, राइट. ही वॉज वाइट इन कलर विद ब्राउन स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी. आप सबने देखे होंगे पेट डॉग्स, है ना, बहुत सारे लोगों के घर पे भी होंगे. Okay, so some dogs are having some dogs are white in color, but they are having some brown spots on their body, right? जैसे कि कुछ dogs होते हैं full white, but they are having black spots on their body, and some are totally white, totally skinny color or black, है ना. So this dog Snoopy was white in color with brown spots on his body. Okay. Then one day Snoopy was lying on the grass in the garden. Okay, स्नूपी कहाँ था? एक दिन स्नूपी गार्डन में ग्रास के ऊपर लेटा हुआ था. ओके, देन ही सॉ अ कैट वॉकिंग ऑन द हाई वॉल ऑफ द गार्डन. तो तभी स्नूपी की नज़र गई गार्डन के साइड से जो दीवार बना हुआ है, लाइक वॉल, है ना, उस पर उसकी नज़र गई. उसने देखा कि एक कैट, दैट इज बिल्ली, है ना. बिल्ली क्या कर रही थी? दीवार पे से चल रही थी. The cat was walking on the wall, है ना, and suddenly Snoopy saw that. Okay, then what happened? Snoopy thought it must be so nice to be high above the ground. Snoopy ने तुरंत सोचा कितना मज़ा आता होगा ना ग्राउंड से ऊपर, है ना. एक हाइट पर थी बिल्ली, है ना. The cat was on a height, है ना, above the ground. ग्राउंड से कुछ ऊपर दीवार पर चल रही थी कैट, है ना. सो दैट टाइम स्नूपी ने क्या सोचा? ज़मीन से थोड़े ऊपर रहना कितना अच्छा लगता होगा, एक हाइट पर वॉक करना कितना मज़ा आता होगा, ऐसे को सोचने लगा, है ना. देन इफ ओनली आई कुड क्लाइंब लाइक दैट कैट. सिंस ही कुड नॉट क्लाइंब ही फेल्ट सैड. लेकिन सिर्फ तब मज़ा आएगा ना जब मैं भी उसकी तरह चढ़ पाऊँ. स्नूपी ने क्या सोचा कि ग्राउंड के ऊपर एक हाइट पे दीवार पे चलने में कितना मज़ा आता होगा, लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है जब मैं भी चढ़ पाऊँ, है ना. लेकिन सैड, ही कैन नॉट क्लाइंब लाइक दैट कैट, है ना. द डॉग स्नूपी कैन नॉट क्लाइंब ऑन द वॉल लाइक द कैट डिड, है ना. स्नूपी कैट की तरह उस दीवार पे नहीं चढ़ सकता था, तो सैड, he was very unhappy about that he wanted to climb on but he could not. So did you get now what you have to do in that second question? warm up में second question में क्या बोला है? You have to write two things that you want to do but you could not. Just like Snoopy wanted to climb on the wall and walk on the wall but he could not, है ना, because he could not climb the wall, है ना. Then next day he went for a walk along the river with Raj. Raj कौन है? Yes, Raj का the dog था Snoopy, है ना. Snoopy was Raj's pet, है ना. So along with Raj, Snoopy went for a walk रिवर साइड, है ना. रिवर साइड राज कहाँ गया था? राज स्नूपी को लेके कहाँ गया? रिवर साइड वॉक के लिए गया.
Okay, then he saw some fish swimming in the river. तभी स्नूपी ने देखा कि उस रिवर में कुछ फिशेस स्विम कर रहे थे. क्या कर रहे थे? स्विम कर रहे थे. ओके, ही थॉट हाउ आई विश आई कुड लिव इन द कूल वाटर. तब तुरंत स्नूपी ने फिर से सोचा, काश मैं भी इनकी तरह पानी में रह पाता, मैं भी तैर पाता, है ना. लेकिन इज इट पॉसिबल? नो, है ना. वाई? सिंस स्नूपी कुड नॉट लिव इन द वाटर ही फेल्ट बैड. स्नूपी को फिर से बुरा लगा. क्यों? क्योंकि वो पानी में नहीं रह सकता, वो तो जमीन पे रहता है ना. डॉग्स लिव इन वाटर और नो, डॉग्स कैन नॉट लिव इन वाटर, राइट. दे लिव ऑन ग्राउंड, है ना. वो ग्राउंड पे रहते हैं और वो पानी में सिर्फ जा सकते हैं. सम ऑफ द डॉग्स नो हाउ टू स्विम बट सम डू नॉट, है ना. सो इससे क्या पता चल रहा है? स्नूपी इज अगेन सैड बिकॉज ही कैन नॉट स्विम लाइक फिश एंड ही ऑल्सो कैन नॉट लिव इन द वाटर, है ना. सो अगेन ही वॉज सैड एंड ही फेल्ट बैड. ही थॉट ही वॉज नॉट लकी लाइक द फिश. और वो ये सोचने लगा कि मैं फिश की तरह लकी नहीं हूँ, है ना. ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट दैट कि he cannot swim in the water. Then next page, page number 53. After a few days, he saw a giraffe plucking leaves from a tree. कुछ दिनों बाद स्नूपी ने देखा कि एक जिराफ. Do you know giraffe? Yes, giraffe with a long neck and having a good height, है ना. Okay, you all know. Yes, so giraffe क्या कर रहा था? He was plucking leaves, है ना. Plucking means किसी चीज़ को रिमूव करना या रिप्लेस करना, एक जगह से हटाना, है ना. और टू पुल आउट समथिंग, है ना. सो द जिराफ वॉज प्लकिंग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज. ट्रीज पे से वो लीव्स को प्लक कर रहा था, है ना. तो ये देखते ही सेड वाओ व्हाट अ लॉन्ग नेक द जिराफ हैज. स्नूपी ने तुरंत क्या कहा? वाओ व्हाट अ लॉन्ग नेक जिराफ हैज. जिराफ की कितनी अच्छी लंबी गर्दन है, ऐसा स्नूपी ने सोचा. देन ही कैन ईजिली रीच आउट एंड प्लक द लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज. और वो तो बहुत ईजिली टॉल ट्रीज तक पहुंच भी सकता है क्योंकि उसके पास लॉन्ग नेक है और वो ईजिली लीव्स को प्लक भी कर सकता है, राइट. एवरीथिंग मस्ट बी सो ईजी फॉर हिम. और इसी वजह से स्नूपी को लगता है कि सब कुछ जिराफ के लिए बहुत ईजी होता होगा. बट क्या ऐसा होता होगा? क्यों? क्योंकि जिराफ की लंबी नेक है तो ही कैन नॉट फिट एवरीवेयर, है ना. वो अगर छोटी हाइट के कोई ब्रिजेस हो या दीवार हो या किसी रूम के अंदर क्रॉस करना हो तो क्या जिराफ के लिए वो ईजी होगा? नो, क्योंकि ही इज़ वेरी टॉल हैविंग वेरी लॉन्ग नेक, है ना. सो इट्स नॉट लाइक ही इज़ हैविंग अ लॉन्ग नेक सो इट इज़ ईजी फॉर हिम टू डू एवरीथिंग, है ना. एवरीथिंग हैज़ अ ड्रॉबैक, राइट. अगर आपके पास लॉन्ग नेक हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग हाइट वालों के लिए ये भी पॉसिबल नहीं कि वो हर जगह फिट हो सके या हर जगह क्रॉस कर सके, है ना. उसके भी ड्रॉबैक्स होते हैं. छोटी हाइट हो तो भी प्रॉब्लम है, लंबी हाइट हो तो भी प्रॉब्लम है, राइट. देन आफ्टर सम डेज स्नूपी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल इन द गार्डन. अ स्पैरो फ्लू पास्ट हिम. आफ्टर सम डेज स्नूपी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल. स्नूपी खेल रहा था एक बॉल के साथ. उसी वक्त एक स्पैरो गार्डन के ऊपर से ऐसे क्रॉस हुआ उसके पास से, है ना. तो उसने उसे देखा कि द स्पैरो वॉज फ्लाइंग इन द एयर, है ना. सीइंग स्नूपी प्लेइंग द स्पैरो सेड अलाउड आई विश आई कुड प्ले ऑल डे लॉन्ग लाइक दिस डॉग. तो स्पैरो ने क्या कहा? स्पैरो सेड आई विश आई कुड प्ले ऑल डे लॉन्ग लाइक दिस डॉग. काश मैं रोज़ हर दिन इसी की तरह पूरे दिन में खेल पाती, है ना. ऐसे स्पैरो ने कहा. बट आई हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे. आई हैव टू सर्च फॉर फूड एंड वाटर. लेकिन मुझे बहुत सारा काम करना होता है. मुझे पानी और खाने के लिए ढूंढते हुए बहुत दूर दूर तक के उड़ के जाना पड़ता है ना. I have to build a nest for my family. I feel tired after flying so long. और मुझे अपने घर के अपने फैमिली के लिए घर भी बनाना होता है. नेस्ट, डू यू नो स्पैरो वेयर डू दे लिव? दे लिव इन अ नेस्ट, है ना. सो दैट नेस्ट केम फ्रॉम वेयर? डिड समवन गिफ्टेड स्पैरो?
क्या कोई गिफ्ट देता है स्पैरो को? नो, दे मेक दैट नेस्ट, है ना. दे फ्लाई सो फार, सो लॉन्ग, एंड दे ब्रिंग स्मॉल sticks, है ना, and then they make their nest for their family, है ना. And also they have to fly for so far to in search of food and water, and after in the end in the evening they feel so tired, है ना, क्योंकि वो बहुत दूर दूर ऊपर तक के उड़ते हैं तो वो थक जाते हैं, राइट. So for today we'll read till this only, and tomorrow we'll continue with the same lesson, है ना. So आज हमने कितना क्या पढ़ा बेटा कि Snoopy is an unhappy dog and he is Raj's pet dog, and wherever he find something that he could not do, he feels so sad and he becomes so upset about it, है ना. क्या होता है, राज का एक पेट डॉग है स्नूपी, और वो अनहैप्पी होता है क्योंकि वो ऐसी जो भी चीज़ देखता है जो वो नहीं कर सकता वो तुरंत अपसेट हो जाता है, एंड ही फील सो सैड दैट आई कांट डू दैट, है ना. फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे पढ़ा कि उसने जब फिश को देखा कि फिश स्विम कर रही है, फिश पानी में रहती है, हमेशा ठंडे पानी में रहती है, तो स्नूपी को लगता है काश मैं भी उस ठंडे पानी में हमेशा रह पाता, बट ही कैन नॉट, है ना, ही कैन नॉट ब्रीथ देयर, है ना. और फॉर एंड ऑल्सो द कैट वॉज क्लाइंबिंग ऑन द वॉल एंड वॉकिंग ऑन द वॉल, वो भी स्नूपी नहीं कर सकता, तो स्नूपी वहाँ भी बहुत अपसेट हो गया. उसके बाद वो जब खेल रहा था तो उसने देखा कि जिराफ ट्री के पास जा कर के इतनी लॉन्ग नेक है, तो उसने डायरेक्टली बहुत हाइटेड ट्री से लीव्स प्लक करके खा लिया, लेकिन ही कैन नॉट डू द सेम. तो अगेन ही फेल्ट वेरी सैड एंड अपसेट, है ना. वो भी नहीं कर पाया तो वो फिर से बहुत अपसेट हो गया. क्यों? क्योंकि वो जिराफ की तरह नहीं है, उसके लॉन्ग नेक नहीं है, तो वो उसके लिए भी बहुत डिसअपॉइंट हो गया, और उसको ये लगने लगा कि जिराफ की इतनी लंबी नेक है तो उसके लिए हर चीज़ करना कितना ईजी होगा, है ना. लेकिन at last, when Snoopy was playing in his playground and he saw a sparrow was flying across him, so the sparrow thought the same way Snoopy thought, है ना. स्नूपी ने जैसे कि कैट, फिश और जिराफ को देख करके सोचा, वैसे ही स्पैरो ने भी स्नूपी को देख करके सोचा क्या, कि काश कि मैं इसकी तरह पूरे दिन खेल पाता, है ना, आराम से बैठ पाता. But is it possible for the sparrow? No. The sparrow has to fly so far in search of food and water, and also he has to make nest for his family, है ना. स्पैरो को क्या करना पड़ता था, दूर दूर उड़ के जाके खाने और पानी ढूंढना पड़ता था, साथ ही उसे अपनी फैमिली के लिए नेस्ट भी बनाना पड़ता था, है ना. और उसके बाद वो इतना थक जाता था क्योंकि वो इतने दूर दूर फ्लाई करके जाता था कि ही बिकम सो टायर्ड, है ना. सो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है. नाउ द स्टोरी इज स्टिल रिमेनिंग. कुछ और अच्छे फन चीज़ें हैं स्टोरी में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, टिल दैट रीड दिस चैप्टर as far as I have explained. Okay, so good day everyone.